my dear students, and welcome to this lesson. So to begin with the C language, firstly we will see the history of C language. That is how and when a C language has evolved. So actually in a C language is evolved from these three languages, that is Algol, then BCPL, that is Basic Combined Programming Language, and the B language. सो ये तीनों लैंग्वेज मिला के बनी है हमारी लैंग्वेज, दैट इज द सी लैंग्वेज, एंड इट इज डेवलप्ड बाय अ पर्सन. द सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय द पर्सन मिस्टर डेनिस रिची in 1972 at Bell Laboratories, AT&T Bell Laboratories. So actually see what these languages are actually, what is Algol language, BCPL and the B language. So this Algol language is said to be the root of all modern languages, which was developed in 1960. सो अभी जितनी भी सभी लैंग्वेजेस है वो सभी लैंग्वेजेस का रूट एक्चुअली था, दैट इज द अल्गोल लैंग्वेजेस. आफ्टर दिस अल्गोल लैंग्वेज देन कम्स BCPL language, which is called as the Basic Combined Programming Language, which was developed by Mr. Martin Richards in 1967. So Algol language के बाद डेवलप हुई BCPL लैंग्वेज, जो कि 1967 में आई, और जो लैंग्वेज को बनाया था मिस्टर मार्टिन रिचर्ड्स ने. So after that, using this language, using basic combined programming language, Mr. Ken Thompson developed a new language which was called as the B language. So यही लैंग्वेज यूज करके नई लैंग्वेज बनाई गई, दैट इज कॉल्ड एज द बी लैंग्वेज, एंड इट इज डेवलप्ड बाय मिस्टर केन थॉमसन. आफ्टर दैट मिस्टर केन थॉमसन एंड द मिस्टर डेनिस रिची was developing a new operating system, that is the Unix operating system. यानी दोनों का प्रोजेक्ट था, मिस्टर केन थॉमसन का और मिस्टर डेनिस रिची का, जो कि नई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. So for that operating system, Mr. Dennis Rich is requiring a new language which is having all the features of this language. जिनको यानी उनको ऐसी एक लैंग्वेज चाहिए थी जिसमें ये तीनों लैंग्वेज के फीचर्स हो. So therefore he had made a new language, completely new language, which is the C language. And as after B, so B language के बाद में आई हुई language है, that's why the name, that's why he had named the new language as the C language. So that means actual purpose of C language was for creating a new operating system, that was the Unix operating system. But after that, C seems to be very useful and very simple for creating a simple applications also, and also the system softwares. यानी C language जब बनी थी तब यानी उसमें ये कैपेबिलिटी थी कि सिंपल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, तो वहां से लेके तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हो. सो देयरफॉर सी बिकम वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम, एंड नाउ ऑल्सो सी इज इक्वली पॉपुलर, सी इज इक्वली वेटेजेबल to the other languages also. So now we will see about the features of C language, why the C becomes so popular. So these are the features because of which C language becomes very popular. So let us see what these features are. So first feature of C language is that it is very simple and efficient. So actually the syntax of C language is very simple. It is very much similar to the English language. यानी सी का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स मीन्स वे ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का जो सिंटैक्स है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ प्रिंट करना होता है तो वी विल बी यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड एज द प्रिंट एफ फंक्शन. अगर कुछ वैल्यू स्कैन करनी होती है, इनपुट करनी होती है, देन वी विल बी यूजिंग द स्कैन एफ फंक्शन. या फिर अगर आपको कुछ कंडीशन टेस्ट करनी है, देन वी विल यूजिंग द इफ स्टेटमेंट, जस्ट लाइक इन इंग्लिश. सो यानी ये लैंग्वेज आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो इफ यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज. सो देयरफॉर
Generally, if you are learning a programming, then you have to learn C language first. So इसलिए यानी बच्चों को भी अगर पढ़ाना होता है, छोटे बच्चों को अगर प्रोग्रामिंग पढ़ाना है तो उनको शुरू करते हैं C लैंग्वेज, because it is very simple to learn and very easy to understand. So this is its first feature because of which C language becomes so popular. बहुत इजी भी है और बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत इजीली लर्न कर सकते हो. देन सेकेंड फीचर इज इट्स पोर्टेबिलिटी. A C program is a portable program. So portable program means if you write a program on one system, then it can be easily run on any another system. यानी एक सिस्टम में अगर आपने C का प्रोग्राम किया है तो वही प्रोग्राम आप किसी दूसरे सिस्टम में भी कर सकते हो with little bit modification. थोड़े बहुत आपको modifications करने होते हैं. So therefore C program is called as the portable program, or C language has its portability. C language is the portable language. Then third function, that it is a function rich libraries. So actually library means here where a lot of programs are already written. यानी वैसे हमारे इंग्लिश में लाइब्रेरी यानी क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे हुए होते हैं. सो लेकिन लैंग्वेज की लाइब्रेरी में बहुत सारे प्रोग्राम रखे हुए होते हैं. सो एक्चुअली सी लैंग्वेज में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी लिखे हुए हैं विच वी विल बी यूजिंग इन अवर प्रोग्राम्स, जो कि हम डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको खुद का प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ता है. इट इज अ रेडीमेड प्रोग्राम इन द सी लाइब्रेरी. सो ऐसे बहुत सारे फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन, इनपुट आउटपुट फंक्शन, स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन, देर आर सो मेनी लाइब्रेरीज इन सी लैंग्वेज विच वी कैन यूज इन अवर प्रोग्राम. यानी आपको स्क्रैच से, शुरुआत से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है. अगर वो ऑलरेडी लाइब्रेरी में है तो वी कैन डायरेक्टली use it in our program. So this is the function rich library feature of C. Then next feature is that extensibility. So what is mean by extensibility? Extensible means a program can be easily extended. So what is mean by actually extended? So if a program is already written by someone, अगर आपने या फिर किसी और ने एक प्रोग्राम लिख के रखा है किसी एक चीज के लिए, तो वो प्रोग्राम आप इजीली अपने प्रोग्राम में ले सकते हो और उसका यूज कर सकते हो. That means we can extend the program what others have already done. यानी दूसरों ने जो कुछ भी पहले करके रखा है. सो जैसे कि लाइब्रेरी सी की खुद की भी हो सकती है या फिर आप खुद भी लाइब्रेरी बना सकते हो जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं. सो दैट प्रोग्राम कैन बी इजीली टेकन बाय अदर पर्सन्स. यानी जिसने ऑलरेडी, किसी ने अगर प्रोग्राम लिखा हुआ है तो वही प्रोग्राम हम यूज करके अपना प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दैट इज द फीचर विच इज कॉल्ड एज द एक्सटेंसिबिलिटी. देन नेक्स्ट is modularity with structured language. So what is mean by actually modularity? अगर आपको बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, या फिर एक ऑफिस है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे काम हैं, तो यू डोंट हैव टू राइट वन सिंगल प्रोग्राम फॉर कंप्लीट सॉफ्टवेयर. यानी पूरे सॉफ्टवेयर के लिए आपको एक ही प्रोग्राम नहीं बनाना होता है. So actually all the program या फिर this software is divided into number of modules. यानी हम क्या करेंगे, जो सॉफ्टवेयर आपको बनाना है उसको डिपार्टमेंट वाइज मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसपे अलग अलग लोग काम करेंगे. एक मॉड्यूल पर्सन 1 बनाएगा, दूसरा मॉड्यूल पर्सन 2 बनाएगा, देन पर्सन 3 एंड सो ऑन. सो यानी एक पूरा टीम बना के अलग अलग प्रोग्राम या फिर अलग अलग मॉड्यूल्स करेंगे और बाद में उनको हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं. सो दैट मीन्स यू डोंट हैव टू राइट अ सिंगल प्रोग्राम फॉर द सिंगल प्रोजेक्ट. यू कैन डिवाइड द प्रोजेक्ट इन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड देन दैट मॉड्यूल्स विल बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल प्रोग्राम. यानी एक प्रोजेक्ट पे एक बार 10 लोग, 15 लोग, नंबर ऑफ peoples can work together for a single program. That is called as the structured programming or the modular programming, and which can be easily used in
सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में आप बहुत इजीली कर सकते हो। एंड लास्टली एंड मोस्ट demanding feature of C language, that the C language is called as the mid-level language. So what is mean by this mid-level language? तो जैसे कि हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, languages are divided into machine language, assembly language and the high level language. So यानी कोई भी एक लैंग्वेज हाई लेवल हो सकती है, असेंबली लैंग्वेज हो सकती है, या फिर मशीन लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन सी लैंग्वेज वॉज द ओनली लैंग्वेज वेयर you can do programs in high level language programming and also in assembly language programming. यानी C language is not a completely high level language. हाई लेवल लैंग्वेज में आप एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हो, सिंपल एप्लीकेशंस, लेकिन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाना है, देन ऑल्सो सी लैंग्वेज कैन बी यूज्ड वेरी इजीली बिकॉज सी सपोर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑल्सो। सी में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी होती है जिसमें हार्डवेयर से रिलेटेड आपको क्या करना होता है, प्रोग्राम करना होता है। So therefore this C language is also called as the mid-level language. But to use the assembly language programming, you must know about the architecture of the system or architecture of the machine for which you are writing the program. So in this course, we will be using C language as a high level programming language. So this is about all the features of C language, because of which C language is very popular at that time also and now also. So this is all for now. In the next lesson, we will be coming up with new learnings. Thank you.